all my dear students. Welcome in your online classes of social studies. So previously we started with chapter 5 of your history book, that was rulers and buildings. In that chapter we saw how from the 8th century to the 18th century, or you can take the time period of 7th century to the 18th century, हमारा ये जो time period था इसमें construction it was at its highest peak in the sense like now the buildings, temples, mosques, tanks, many different buildings you can say were being now constructed by the rulers, and it has some of you can say like the rulers, they had some of the greediness to get the praises of the people, to let their empires being established. That why they were constructing these several types of buildings. So we saw that how the temples in the wars they were being affected, they were being targeted because it has all the wealth of the king. Whenever because we saw that whenever a king or ruler he was building a temple, he used to put all the wealth which he has excavated or plundered from some another king whom he had defeated in the previous war. So he placed all that wealth in the temple only. Now then after that we saw the Mughal time period, like जो Mughal का time period था, we saw all the Mughal rulers like they were personally interested in the architecture, literature and art, and then we saw how they emphasized on the riverfront garden layout. शाहजहाँ के टाइम पीरियड में हमें ये जो रिवर फ्रंट गार्डन का लेआउट था ये देखने को बहुत मिला था. देन फिर ताजमहल जो एक ग्रैंड यू कैन से ग्रैंड कंस्ट्रक्शन है शाहजहाँ के टाइम पीरियड का, एंड इट इज़ इन अमंग द 7 wonders of the world also. So we saw that how it was being constructed next to the river. तो हमने देखा था इम्पोर्टेंस भी रिवर का कि क्यों रिवर्स के ही साइड में टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, मॉस्क्स बिल्ड होते थे, जस्ट इन ऑर्डर टू लेट द पीपल ऑफ द एम्पायर नो दैट यू विल नेवर गेट द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन आर रूल टाइम पीरियड. ओके, नाउ today we will study a topic, the last subtopic of this chapter, that is the region and empire. Now what happened, जो rulers थे, all these rulers what they did was they were continuously expanding their empire, and as they were expanding their empire, so different regions it was coming under them. And not only this, like whenever they went to another ruler's kingdom, like जब भी वो किसी और राजा के kingdom में उसके empire में गए, so they saw, okay, what they saw is they saw the kind of construction which that ruler was following. ऐसा तो था नहीं कि सब राजा एक तरह का ही कंस्ट्रक्शन कराते थे. All the rulers they like they adapted or they followed different styles of construction. So what happened, जब ये जो exchange हुआ, exchange कैसे हुआ, सबसे पहला तो हमारा expanding जो प्रोसेस था, लाइक जैसे जैसे एक जो राजा था, जो भी रूलर हुआ करता था उस टाइम पीरियड का, जैसे जैसे वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे थे तो वो डिफरेंट रीजन्स वो ऑक्यूपाई कर रहे थे. तो वहाँ से उन्हें क्या मिला, दे एक्सचेंज देयर कल्चर्स, दे एक्सचेंज देयर ट्रेडिशंस. उन्होंने अपना ट्रेडिशन एक्सचेंज किया. कैसे, उन्होंने वहाँ का जो ट्रेडिशन था उसे अडेप्ट किया, अपना ट्रेडिशन वहाँ पे एम्फसाइज किया. ठीक है. सो नाउ इन दिस टॉपिक वी विल सी दैट हाउ दिस क्रॉस फर्टिलेशन took over between the traditions of different regions and empires. So on page number 71 it's given, as construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adapted by another. So what happened कि जब ये हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड शुरू हुआ, जो 8th से 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था, 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, कंस्ट्रक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आइडियाज़ भी एक्सचेंज होने लगे. शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ वॉज देयर फॉर द ट्रेडिशन पर्पज. हियर वन एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन, लाइक इन विजयनगर for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. What happened, जो विजयनगर में एलिफेंट स्टेबल्स था, एलिफेंट स्टेबल्स मतलब स्तबल जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता है, तो वो जिस डिज़ाइन का उसको जिस तरह से आर्किटेक्चर दिया गया था, जिस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया था, वो डिज़ाइन कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई थी, लाइक उन्हें वो डिज़ाइन कहाँ से प्रेरणा मिली थी, प्रेरणा इन द सेंस कि कहाँ उन्होंने इतनी अच्छी डिज़ाइन देखी थी कि विजयनगर में भी उन्होंने वही डिज़ाइन बनवा ली. सो दैट डिज़ाइन, दैट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द
वहाँ से जो जस्ट अटैच्ड था सल्तनत ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर और गोलकोंडा का जो स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस होके विजयनगर में भी एलिफेंट स्टेबल्स को उसी डिजाइन में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। ओके, then the next example, in Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। अब वृंदावन में जो मथुरा में टेम्पल्स बनती थी ना, जस्ट इमेजिन वृंदावन की मथुरा की जो टेम्पल्स थी वहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स था वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था? इट वॉज सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस। जो मुगल के लाइक जो हमारे मुगल रूलर्स हुए थे, तो जो मुगल के पैलेसेस जो बड़े बड़े भवन होते थे, शाही बंग उनके राजमहल होते थे फतेहपुर सीकरी पे, वहाँ से इन्फ्लुएंस होके वैसा ही टेम्पल मथुरा में बना। सो यू कैन सी दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ द ट्रेडिशंस, कि इट वाज नॉट लाइक कि हिंदुइज्म में हम फॉलो नहीं करेंगे आर्किटेक्चर जो हमारे मुगल्स ने बनाया, ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles। और जैसा कि भी मैंने बताया, as I told you, कि ये जो large empire expand हो रहा था, different regions क्या हो रहे थे? कंट्रोल में आ रहे थे, एक empire के कंट्रोल में आ रहे थे। तो जब different regions एक empire के कंट्रोल में आ रहे थे, तो जितने भी रीजन्स आ रहे थे जरूरी नहीं था कि सारे रीजन्स एक ही कंस्ट्रक्शन स्टाइल को फॉलो कर रहे हो। दे हैड द वेरिएशंस इन एवरीथिंग, सो दैट वेरिएशन वाज बीइंग एक्सेप्टेड, बीइंग अडैप्टेड एंड नाउ बीइंग एम्फसाइज्ड इन द कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स। मुगल रूलर्स वर particularly skilled in adapting regional आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। एंड मुगल टाइम पीरियड था, जो मुगल एम्परर्स का टाइम पीरियड था, लाइक दे वर वेरी मच ईगर एंड दे वर वेरी मच ओवर हियर सिंस दे वर इंटरेस्टेड। वो लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शंस को क्या करते थे? फॉलो अप करते थे while बिल्डिंग एनी ऑफ द बिल्डिंग्स और टेम्पल्स, मॉस्क इन देयर टाइम पीरियड। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut। अब क्या हुआ, बंगाल के जो लोकल रूलर थे, तो उन्होंने कौन सा स्टाइल अपनाया? एक थैच्ड हट का। थैच्ड मतलब होता है जो फूस होता है, जिसकी झोपड़ियाँ बनती हैं, तो वो स्टाइल उन्होंने अपनाया कंस्ट्रक्शन के लिए। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम, और मुगल्स ने इसे नाम दिया बंगला डोम, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल से रिलेटेड था। और डोम क्या स्टाइल होता है? इट इज अ राउंड रूफ, जो ऐसे राउंड रूफ होता है, दिस इज द डोम। सो मुगल्स ने इसे नेम दिया बंगला डोम एंड दे लाइक्ड इट वेरी मच। एंड देन अगेन व्हाट मुगल did was, like the Mughals, they again accepted it and practiced it in their own building construction। So it's written they used it in their architecture। और मुगल्स ने क्या किया? इस बंगला डोम स्टाइल को अपने आर्किटेक्चर में प्रैक्टिस किया, यूज किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट एंड देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स फॉर दिस, लाइक कि मुगल्स ने क्या किया? उन्होंने अडेप्ट किया डिफरेंट रीजन से, जो भी उन्हें अच्छा लगा कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने उस स्टाइल को अपनी कंस्ट्रक्शन में क्या किया? यूज किया। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of the Gujarat and Malwa। और गुजरात और मालवा में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं जिसका आपको सिमिलर एग्जाम्पल कहाँ दिखेगा? अकबर का जो रेन था, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में जो उनकी कैपिटल सिटी थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी कंस्ट्रक्ट की, दोज वर सिमिलर टू द बिल्डिंग्स present at that time in the Gujarat and Malwa। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, want means होता है गायब होना, कम होना, like it started decreasing। 18th century में यही तो हुआ था कि जो मुगल पावर था, जो मुगल एम्पायर था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा था? It started weakening। The architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। एंड यहाँ पे इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि भले ही 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर
started weakening, but the type of constructions, the styles which they used in building the different buildings and constructing the different buildings was being still used even after their declination. Okay, so I hope you would have understood this chapter. It was very interesting chapter. यहाँ पे आपको पता चला कि कैसे जो different buildings आज आप देखते हो, let it be the mosque, let it be the church, let it be the temples, let it be the tanks, any buildings which you see today, how they got influenced, how were they built, what were the purposes behind these rulers to build such buildings. Okay everyone, thank you class.